Hello children, welcome back to Math Stimulus. As math is the music of reason. In this module of differentiation, you will learn derivative of a function with respect to another function. Let us consider fx and gx be the two functions, and we need to find out differentiation of fx with respect to gx. What are the working rules? हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन? इन द फर्स्ट स्टेप you will let y is equal to fx, z is equal to gx, then find dy by dx, find dz upon dx, divide dy by dx with dz upon dx, and you will get dy by dz. This way you can find out derivative of any one function with respect to another function. You need to take care one point, dz upon dx should not equal to 0. Let us see few solved examples how to apply this working rule to find differentiation of one function with respect to another function. Children, see first question. We need to differentiate x cube upon 1 minus x cube with respect to x cube. So first step, let y is equal to x cube upon 1 minus x cube, z is equal to x cube, and we need to find dy upon dz. तो सेम आपके पास y एक रेशनल फंक्शन है, आप इसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करिए. यू फाइंड द डिफरेंशिएशन dy by dx, you find dz upon dx, divide dy by dx upon dz upon dx, cross out this term, and this is your final answer. Just keep in mind कि आपका x 1 और 0 नहीं होना चाहिए. Second question, differentiate sin square x with respect to e raised to the power cos x. बेटा यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन हमने करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रिस्पेक्ट में. तो पहला स्टेप, लेट y is equal to sin square x. Second step, let z is equal to e raised to the power cos x. And what we need to find? Yes, dy by dz. So first find dy by dx. It is here, very simple. Find dz upon dx. e की पावर f का आपका फॉर्मूला लग रहा है, e की पावर f, डिफरेंशिएशन ऑफ f. Divide these two and get this final answer. Now in this question, you need to differentiate tan inverse of f with respect to sin inverse f. बेटा ये क्वेश्चन आपका CBSE 2004 के कंपार्टमेंट में आया हुआ है और आपने डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगो किया हुआ है. अब यहाँ क्या क्वेश्चन है, एक इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर इनवर्स ट्रिगो हमने करना है. तो पहला स्टेप हमारा बिल्कुल सेम है. आप लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स f, लेट z इज इक्वल टू sin इनवर्स f, वेयर f इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ बेटा एक स्टेप और ऐड हो रहा है कि आप सेकेंड स्टेप पे इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे. सो टू सिंप्लीफाई, put x is equal to t. t would be tan inverse x. Put करिए वैल्यू 2 tan t upon 1 minus t tan square t, और सिंप्लीफाई करके आपको y is equal to 2t मिलेगा. अब y 2t, आपको y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, फंक्शन x में गिवन है, x में ही वापस कन्वर्ट करना है. तो पुट द वैल्यू ऑफ t and get y is equal to 2 tan inverse x. This is your simplified form. So your first simplified form is y is equal to 2 tan inverse x. Similarly, अब sin inverse 2x upon 1 plus x square को सिंप्लीफाई करोगे, x को tan थीटा रखो, ये फॉर्मूला आपका बन गया sin 2 थीटा का, एंड sin inverse sin 2 थीटा is equal to 2 थीटा. Replace the value of theta, 2 tan inverse x. तो आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई z की. y is equal to 2 tan inverse x, z is equal to 2 tan inverse x.
बेटा देखो हम यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं, अब डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत है। तो आप डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई डी एक्स, आपका आंसर आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dz अपॉन डी एक्स करोगे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन डिवाइड एंड यू विल गेट आंसर 1। दिस इज आवर प्रीवियस मेथड विच वी हैव लर्नड। बट बेटा अगर हम यहाँ पर देखें तो एक और पॉइंट अब हमारे सामने आ रहा है। यहाँ पर इन्हीं दोनों इक्वेशंस से y भी 2 tan इनवर्स x है, z भी 2 tan इनवर्स x है, हम इसे लिख सकते हैं ना y इज इक्वल टू z। तो यहाँ इस पॉइंट पे आकर वी आर एबल टू राइट y इन टर्म्स ऑफ z डायरेक्टली। सो ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया कि हमारे पास अगर हमें y इज इक्वल टू z मिल गया तो यहाँ हम डायरेक्टली dy बाई डी जेड निकाल सकते हैं। इस स्टेप पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z एंड डिवाइड बाई डी जेड इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज ओनली आवर base, this is only our target to find out in this question. We need to find differentiation of y with respect to z and answer is 1. तो अगर हम इस तरह के questions में y और z को एक इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेट कर पाते हैं तो हमारे स्टेप्स बहुत सारे रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे यहाँ आपको अब dy बाई डी एक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, dz बाई डी एक्स नहीं निकाला, ना ही आपने डिवाइड किया। एक स्टेप में आपने इक्वेट किया और दूसरे स्टेप में आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया। तो इस तरह के स्टेप्स का ये बेनिफिट है आपका। इफ़ यू कैन अप्लाई इट, इफ कैन नॉट देन डू एज यूजुअल। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स f with respect to under root 1 minus x square at x is equal to half। बेटा ये क्वेश्चन CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेप, लेट y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2x square minus 1 और z लो under root 1 minus x square। अब वही फर्स्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन का है आपका। सिंप्लीफाई करिए इसको आप। sec इनवर्स 1/x को आप लिख सकते हैं cos इनवर्स x। अब x को रखा हमने cos t, फॉर्मूला बन गया ये cos 2t का, और सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई हमारी cos इनवर्स cos 2t इज इक्वल टू 2t। तो y इज इक्वल टू 2t, t को हमने वैल्यू रखी cos इनवर्स x, तो हमारा फाइनल हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई x की टर्म में y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। सो अब हमारे पास y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x और z इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कीजिए dz अपॉन डी एक्स, डिवाइड करिए एंड गेट आंसर एंड यू विल गेट dy बाई dz इज इक्वल टू 2/x। बेटा यहाँ एक स्टेप और ऐड हुआ था, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस एट x इज इक्वल टू हाफ। तो इस स्टेप से आपका यहाँ एक स्टेप और एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो ये कि आपने यहाँ x की वैल्यू रखनी है एंड दिस वुड बी योर अल्टीमेटली फाइनल आंसर। सी अनदर एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। Again, it's differentiation of one of the inverse trigo function with respect to another inverse trigo function. First simplify and then differentiate. तो आप simplify करेंगे x, यहाँ tan इनवर्स है, अंदर हमें tan बनाने की जरूरत है। Put x is equal to sin theta upon 1 plus under root 1 minus sin square theta। आपके पास बन गया sin theta upon 1 plus cos theta। हाफ एंगल में रिडक्शन, कॉमन फैक्टर्स कट किए, tan थीटा बाई 2 मिला और हमें यहाँ मिल गया थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास थीटा था साइन इनवर्स x, तो ये बन गया हमारा हाफ साइन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स x इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो ये है हमारी फर्स्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म y की। और अब हमने z को सिंप्लीफाई करना है। तो ये अभी हमने पीछे सिंप्लीफाई किया है लास्ट क्वेश्चन में ही है। 2t आता है हमारे पास सॉल्व करके, z इज इक्वल टू 2t, t को रखा cos इनवर्स t, तो z इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। ये हमारी सेकेंड सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन में हमारी 2y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड z इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x।
ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है। अब आप यहाँ पर स्टेप पे कर सकते हो, dy बाई डी एक्स निकालो, यहाँ से dz अपॉन dx निकालो, डिवाइड करो और आंसर निकालो। लेकिन इन्होंने जो हमारे एग्जाम्पल में हमारे सामने है, जो मैंने स्टेप यहाँ आपको दिखाने की कोशिश की है, वो मैंने क्या दिखाया है आपको, मैंने लिखा है cos इनवर्स x को 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। इसको जो ये स्टेप मैंने अप्लाई किया है, ये मैंने अप्लाई किया है y को डायरेक्टली z की फॉर्म में लाने के लिए, ताकि आपके 3 स्टेप रिड्यूस हो जाएं। तो यहाँ ऐसा करने से ये साइन इनवर्स x हमारा है 2y, इसको हमने लिख दिया 2y, और y इज इक्वल टू, क्योंकि z हमारा आ गया 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 2y, तो ट्रांसपोज करने पर मुझे y डायरेक्टली z की फॉर्म में मिल गया। अब यहाँ से आपने डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई dz करोगे, तो dy बाई dz आपका -1/4 आंसर आपका फाइनल आंसर होगा। Now differentiate tan inverse f with respect to sin inverse f, and where x is not equal to 0. So what is needed? First, let y is equal to tan inverse f, z is equal to sin inverse f, and needed is dy by dz. Simplify करिए पहले, x is equal to tan t रखिए, sec t बना 1 upon cos t, sin t upon cos t, simplification, half angle application, and you will reach y is equal to t by 2. t की टर्म में आया, t को रिप्लेस करो, t is tan inverse x, तो आपको मिल गया y is equal to half tan inverse x, and 2y is equal to tan inverse x. सेकेंड फंक्शन को सिंप्लीफाई करो, आपके पास आएगा 2 थीटा, z is equal to 2 थीटा, जब आप x को यहाँ tan थीटा रखेंगे और थीटा को वापस रिप्लेस करेंगे तो z इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा आपका tan इनवर्स x है। अब यहाँ पर भी वही, या तो आप dy बाई dx यहाँ से निकालो, यहाँ से dz अपॉन dx निकालो, डिवाइड करो, गेट योर आंसर, और tan इनवर्स x को आप रख लो 2y, क्योंकि यहाँ से वो 2y है, तो आपके पास z इज इक्वल टू 2 इंटू 2y, z इज इक्वल टू 4y कन्वर्ट हो गया, y एंड z में डायरेक्ट रिलेशन। Now differentiate y with respect to z and answer will be 1 upon 4. Now we are on this question, tan inverse 1 plus x square minus under root 1 minus x square upon under root 1 plus x square plus 1 minus x square. आपने ये वाली फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद होगी, हमने चैप्टर 2 में की है, हमने इनवर्स ट्रिगो के डिफरेंशिएशन में किया है, आपको इसका सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से आ चुका है, और अब आपने यहाँ इस क्वेश्चन में इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर करना है। तो अब तक हमने इतने क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगो के किए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, फर्स्ट को y, सेकेंड को z, सिंप्लीफिकेशन एंड देन डिफरेंशिएशन। इस पॉइंट पर मैं आपको यहाँ एक और पॉइंट जो बताने जा रही हूँ, देखो वो क्या है। पहले हमने लिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स f, z इज इक्वल टू cos इनवर्स f। जब हमने z इज इक्वल टू cos इनवर्स f लिया तो यहाँ से x स्क्वायर मिला cos z। अब x स्क्वायर cos z आपको मिल गया, x स्क्वायर इज cos z। अब मुझे इसमें चेंज करना है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं यहीं से x स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली अगर cos z लिख रही हूँ तो मेरा फंक्शन देखो y डायरेक्टली z में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। तो इस स्टेप को करने से यहाँ हमें ये फायदा हो रहा है कि हमारा फंक्शन y डायरेक्टली z में कन्वर्ट हो रहा है। तो बस अब आगे चलो, यहाँ पे हमने लिखा cos z, उसको सिंप्लीफिकेशन, हाफ एंगल 1 माइनस टेन जेड बाई 2, ये फॉर्मूला आपका है पूरा 1 माइनस टेन जेड बाई 2 पर 1 प्लस टेन जेड बाई 2, 10 पाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2 का, और ये सिंप्लीफाई होकर आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2। तो y डायरेक्टली z की टर्म में है, डिफ्रेंशिएट करो और आपको आंसर मिलेगा dy बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो आई एम श्योर चिल्ड्रन आपको डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। सो बी हैप्पी, थैंक यू।